Hello students, how are you all? Today I have brought you the video regarding the fifth lecture on acids, bases and salts topic. So without delay we will start the video, and before watching this video please give a like, share the video and subscribe to the channel for getting regular updates. So let us move to our lesson now. So here now sodium hydroxide we are discussing. सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस अल्काली, ये जो अल्काली होता है, दिस अल्काली इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट? इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉस्टिक सोडा. दिस अल्काली इज ऑल्सो नॉन एज कॉस्टिक सोडा. एंड how is it produced? It is produced by the electrolysis. It is produced by the electrolysis of concentrated sodium chloride. Concentrated sodium chloride का electrolysis जब करते हैं तब जाकर के हम लोग इसको मैन्युफैक्चर कर पाते हैं. So here let us take sodium chloride, concentrated sodium chloride, NaCl. This is concentrated sodium chloride, and concentrated sodium chloride should be mixed with water. मतलब we have to add water to it also so that we can do electrolysis. Electrolysis करने के लिए वाटर का ज़रूरत पड़ता ही है. अगर वाटर हम लोग नहीं डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है. ओके, सो हियर बाय एडिंग वाटर एंड पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन्स ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो यहाँ पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, फिर क्लोरीन गैस ऑल्सो वी विल ऑब्टेन, एंड hydrogen gas also we will obtain here in this process. And this process is known as what? It is known as chlor-alkali process. Why is it known as chlor-alkali process? This process is called as chlor-alkali process because here chlor means what? Chlor का मतलब क्या होता है? Chlor means chlorine, and alkali means here sodium hydroxide alkali. Okay, सो इन दिस रिएक्शन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और फिर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज ऑल्सो रिलीज हियर. दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर अल्काली प्रोसेस. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड? कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन सरफ बनाने के लिए यूज करते हैं. आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज रेयन जो होता है, रेयन इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर. आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, तो रेयन बनाते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर कर सकते हैं, और फिर क्या क्या कर सकते हैं इससे कि ऑयल रिफाइनिंग कर सकते हैं. मेनी अदर पर्पजेस आर देयर, मेनी अदर यूजेस आर देयर. ऑयल ग्रीसिंग, सॉरी आई एम व्हाट राइटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, वी कैन डू ऑयल रिफाइनिंग. वी कैन मेक डाइस. डाइस मीन्स व्हाट? डाइस मीन्स कलरिंग मटेरियल्स जो होता है. वी कैन मेक paints with the help of the sodium chloride. So these are the uses of sodium chloride, and we can obtain here chlorine gas, hydrogen gas also by this. Okay, so chlorine gas and hydrogen gas जो होता है इसका भी एक अलग ही अपना एक यूज होता है. So now we are moving on to washing soda. So now washing soda. Washing soda is chemically sodium carbonate dehydrate. Okay, sodium carbonate dehydrate means Na2CO3. This is sodium carbonate. This is the formula of sodium carbonate, Na2CO3. And decahydrate. Deca means how many? Deca means 10. Hydrate means what? Water molecule. 10 water molecule. So how we will write 10 water molecule? You put here one dot and 10 H2O molecule. So this is what? This is sodium carbonate decahydrate. Understand? And this washing soda, that is sodium carbonate decahydrate, is a crystalline solid. Crystal. This is a crystalline solid. Crystalline solid means having a definite shape, size, structure. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. अगर यहाँ पर जो ये 10 वाटर ऑफ मोलिकूल्स है, इसको हम लोग अगर रिमूव कर देते हैं, इफ वी रिमूव दिस 10 वाटर ऑफ मोलिकूल, वाटर मोलिकूल, then what we will get? We will get only Na2CO3, and this Na2CO3 that is sodium carbonate जो हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा? वो एनहाइड्रस होगा. एनहाइड्रस होगा दिखने में. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है?
एनहाइड्रस का मतलब जिसका कोई एक डिफिनिट शेप साइज स्ट्रक्चर ना हो। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस से अगर हम लोग क्रिस्टल से उसका वाटर, ये जो वाटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। यही वाटर होने के कारण से क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो अपना क्रिस्टल शेप ले पाता है। जैसे कि सुगर क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल जो है क्रिस्टल, वो अपना एक डिफिनिट शेप साइज ले पाता है। अगर इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग अगर रिमूव कर देते हैं देन क्या होगा, इट विल टर्न इनटू ए पाउडरी सब्सटेंस। वो पाउडर की तरह दिखने लगेगा, उसका कोई डिफिनिट शेप साइज स्ट्रक्चर नहीं होगा। उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस बोलेंगे। सो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट obtained by removing this 10 water of crystallization 10 molecule of water of crystallization from sodium carbonate decahydrate इससे वॉशिंग सोडा से अगर ये 10 molecule of water of crystallization हम लोग निकाल देते हैं तब क्या मिलेगा हम लोग को, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। और ये सोडियम कार्बोनेट जो है एनहाइड्रस होगा। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, इट्स फॉर्मूला विल बी Na2CO3 only, and now these will be known as Na2CO3 will be called as soda S। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडा S कॉमनली बोलते हैं। ओके, सो गॉट नाउ अ प्रिपरेशन, हाउ इज इट प्रिपेयर। ये जो प्रिपरेशन होता है वॉशिंग सोडा, ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। ये इट टेक्स 3 स्टेप्स टू कंप्लीट। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सो ब्राइन, it is completed in 3 steps and brine is reacted with ammonia and carbon dioxide। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ब्राइन जो होता है, ब्राइन मतलब क्या है, concentrated solution of sodium, concentrated solution of sodium क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl होता है जो हम लोग खाते हैं नमक, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो यही ब्राइन जो है, दिस ब्राइन इज रिएक्टेड विथ एमोनिया, मतलब ब्राइन मतलब NaCl इज रिएक्टेड विथ एमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसको ऐड करते हैं। लेकिन ये ब्राइन जो होता है, ब्राइन के अंदर में क्या होता है, वाटर भी होता है। जैसे इन द सी बीचेस इन गुजरात का जो सी बीच है उसमें हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत ही सॉल्टी रीजन होता है। गुल्फ ऑफ कच्छ जो है, गुल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात के उधर जो है गुल्फ ऑफ कच्छ, उसमें क्या है, ब्राइन बहुत मिलता है। ब्राइन नमक वाला जगह बहुत सारा है जहाँ पर नमक पाया जाता है। इन दैट प्लेस दिस salt sodium chloride is always accompanied with some portion of water। तो इसके अंदर में पानी होता है। now इसलिए हम लोग यहाँ पर पानी भी लिखते हैं। now what will happen, this will form, sodium chloride reacts with ammonia and carbon dioxide to form, क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा, NaHCO3 is what, this is sodium hydrogen carbonate। सो दिस विल बी फॉर्म, ये बन गया। ये बनने के बाद और फिर क्या क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एमोनिया है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो ये एमोनिया और फिर ये क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट होकर के क्या बनेगा, ओके। यहाँ पर एमोनिया और क्लोरीन है नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सोडियम है, हाइड्रोजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोर्शन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यही 3 ऐड होकर के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है। नाउ हियर एमोनिया एंड क्लोरीन इज रिमेनिंग। So here ammonia reacts with chlorine to form ammonium chloride NH4Cl। This is what, this is ammonium chloride। After this brine reacts with ammonia and carbon dioxide to form sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride। Now what will happen, ये जो 2 प्रोडक्ट हम लोग को मिला है, ये पहला वाला प्रोडक्ट जो है इसी से हम लोग को वॉशिंग सोडा मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल्टर्ड आउट कर देते हैं। इज फिल्टर्ड आउट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको फिल्टर कर देते हैं, दिस वन इज फिल्टर आउट करके इसको सेपरेट कर देते हैं। फिर अगर क्या करते हैं, इट इज ड्राइड एंड हीटेड। इसको हम लोग ड्राई करते हैं, सुखा देते हैं, सन ड्राई करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, हीट देते हैं। तब क्या होगा, जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो NaHCO3, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, व्हेन heat is applied to the sodium hydrogen carbonate, then what happens, it becomes sodium carbonate। मतलब इसका हीटिंग करने से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन पोर्शन है ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और फिर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, प्लस
ये जो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है, इससे क्या बनता है, वाटर फॉर्म होता है। जब कोई भी सब्सटेंस को हम लोग अगर हीट करते हैं तो हम लोग को पता है कि उससे क्या रिलीज होता है, उससे हीट करने से अगर उसका अंदर में कोई वाटर मॉलिक्यूल है तो वो वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो जाता है, दिस वी नो। तो यही वही यहाँ पर भी हो रहा है कि इसको हम लोग हीट किए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, देन इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स सोडियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस सोडियम कार्बोनेट इज व्हाट, दिस इज soda S. This is soda S. That is anhydrous sodium carbonate. This is called soda S. Now what we will do? कि soda S is recrystallized to get washing soda. So soda S Na2CO3 इसको हम लोग क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइज मतलब क्या है, एडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन। कोई भी सब्सटेंस में वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं, ऐड कर देने का हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सो हियर सोडियम कार्बोनेट जो है, दिस सोडियम कार्बोनेट सोडा एस इज रिक्रिस्टलाइज, इज एडेड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर 10 डेकाहाइड्रेट है, वॉशिंग सोडा इज डेकाहाइड्रेट, सो 10 वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड हियर टू ऑब्टेन Na2CO3, 10 molecules of water, and these 10 molecules of water are known as water of, क्या बोलते हैं, water of crystallization हम लोग बोलते हैं। this is known as water of crystallization because these molecules of water are required to make anhydrous substance into crystalline substance। जो कोई पाउडरी सब्सटेंस होता है एनहाइड्रस सब्सटेंस, उसको क्रिस्टलिन सॉलिड बनाने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। Now this one washing soda has many different properties, and according to its properties it has different uses. So what are the uses of this sodium carbonate or washing soda? Let us see again कि sodium carbonate has cleansing properties. Okay, sodium carbonate में क्या होता है, cleansing properties होता है। तो इसका uses क्या क्या होगा कि washing soda has cleansing property, means that it can remove dirt and grease from our clothes. dirt and grease को हम लोग मैल धूल को जो होता है उसको निकाल देता है, and so it is used as a cleansing agent in different types of soaps। बहुत सारा सोप में इसको यूज करते हैं, सोप बनाने के लिए यूज करते हैं। and then it is also used for removing permanent hardness of water। हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स जो खारा पानी होता है, खारा पानी को सॉफ्ट वाटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर। ओके, this washing soda can be used to convert hard water into soft water. It is also used in the manufacture of glass, borax and paper. तो next one क्या है, baking soda। baking soda is chemically sodium hydrogen carbonate, okay, NaHCO3। this is sodium hydrogen carbonate। and how is it formed? It is formed by reacting brine with ammonia and carbon dioxide। we have done it in the washing soda। when we were preparing washing soda, कुछ मोमेंट पीछे जाकर के चेक कर लो एक बार वीडियो में ही, कि जब हम लोग वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन सीख रहे थे तो वॉशिंग सोडा का जो पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को ये बेकिंग सोडा मिल चुका था। कैसे करके, बाय रिएक्टिंग ब्राइन विद एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर ब्राइन जो होता है, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज ब्राइन। सोडियम क्लोराइड जो कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एंड एमोनिया, these two are reacted along with कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आई हैव टोल्ड यू का एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर सोडियम क्लोराइड किसके साथ रहता है, सोडियम क्लोराइड में पानी भी रहता है, वाटर, and when they are reacted together then what does it form? It forms NaHCO3। okay, in the washing soda first reaction जो था वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन का, उसमें जाकर के देखो उसमें है, and ammonium chloride NH4Cl are released। this is sodium hydrogen carbonate। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, ऐसे बहुत इजी स्टेप है, आसान स्टेप है। बाय रिएक्टिंग ब्राइन जो होता है सोडियम क्लोराइड और एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद ये बन जाता है, एंड दिस इज आवर बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं। ओके, तो बेकिंग सोडा को अगर हम लोग हीट करें, ठीक, बेकिंग सोडा को अगर हम लोग हीट करते हैं तब क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड?
When baking soda is heated, it decomposes to give sodium carbonate and carbon dioxide gas. सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये भी पिछला वाला प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं। सपोज हियर NaHCO3 on heating. Let us heat this one. Heated. When it is heated, then what will happen? ये भी पिछला वाला वॉशिंग सोडा का जो रिएक्शन था, प्रिपरेशन था, उसका सेकेंड स्टेप है ये। ओके, नाउ व्हेन इट इज हीटेड देन व्हाट विल हैपन? इसका अंदर में जो वाटर है, वाटर जो है, ये हाइड्रोजन जो है, मतलब कि वाटर जो है, ये क्या होगा? हीट करने से कोई भी सब्सटेंस को ये इवापोरेशन हो जाता है। इवापोरेशन होने से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट विल प्रोड्यूस? Na2CO3, sodium carbonate. Sodium carbonate will be formed here. Okay, this sodium carbonate is formed. Now ये जो कार्बन this sodium hydrogen carbonate is heated. When it is heated, it decomposes to sodium carbonate along with the release of carbon dioxide gas and water. Now let us see the uses. Uses इसका जो होता है, क्या क्या uses है इसका? First number point कि as it is used as an antacid. It is used as an antacid to remove acidity in the stomach. एंटासिड के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं एंटासिड, इसको एंटासिड बनाते हैं। ओके, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड मतलब क्या है? टू रिमूव एसिडिटी। एंटासिड मतलब क्या है कि दिस आर ड्रग्स, दिस आर टैबलेट्स विच कैन रिमूव द एक्सट्रीम पेनफुल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ HCl, एक्सेस HCl इन आवर स्टमक। हम लोग का स्टमक में जो एक्सेस HCl बनता है, वही HCl को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। सो इसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस टॉपिक्स। एंटासिड में यूज कर, एंटासिड के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी हम लोग यूज करते थे। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी, बेकिंग सोडा को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड यूज इज दैट इट इज यूज इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हम लोग ब्रेड में डालते हैं, केक में डालते हैं, क्या करने के लिए? इसको पफी बनाने के लिए। PUFFY, पफी। पफी मीन्स स्वेल अप कराने के लिए। जो केक्स है, ब्रेड है, उसको स्वेलिंग अप कराने के लिए जो हम लोग डालते हैं, सॉफ्ट बनाने के लिए, पफी बनाने के लिए जो पाउडर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के रूप में भी इसको, बेकिंग सोडा को हम लोग यूज कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज वी सी दैट कि जो बेकिंग पाउडर होता है ना, हम लोग जो घर में यूज करते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, उसमें क्या होता है? उसमें ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता ही है, बट उसमें क्या होता है? एक कोई माइल्ड एसिड भी होता है। माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड मतलब क्या है? वीक एसिड। ओके, इट कंटेन्स वन वीक एसिड ऑल्सो। वीक एसिड कौन सा रहता है? हम लोग का जो घर में बेकिंग पाउडर यूज करते हैं उसमें कौन सा होता है वीक एसिड? टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड। So tartaric acid is found in the tamarind. Tamarind में tartaric acid पाया जाता है, and this tartaric acid is present in this baking powder also that we use in our homes. So here sodium hydrogen carbonate plus जो ये टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे बेकिंग पाउडर को, तो बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड टार्टरिक एसिड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो टार्टरिक एसिड, कोई भी एसिड को अगर वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं, देन व्हाट हैपन्स? इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। हम लोग को पता है, वी हैव स्टडीड, इफ एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर देन इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस। सो हियर जो टार्टरिक एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, वो यहाँ पर आकर के इससे रिएक्ट होगा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, एंड इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म सोडियम आयन। ये सोडियम आयन जो है, ये सोडियम आयन ये अलग हो जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड एंड वाटर मोलिक्यूल विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड। ओके, एंड ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दिस गोस इनटू द ब्रेड एंड केक एंड मेक्स इट पफी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वो ब्रेड एंड केक जो है उसको स्वेलिंग अप करा देता है, पफी अपीयरेंस बना देता है। सो
एंड दिस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, सोडियम बेकिंग सोडा को। कैसे करके, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और फिर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है प्लस एक क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है उसके साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड 1 सल्फ्यूरिक एसिड। तो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में क्या क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज देयर एंड 1 सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर। देन दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल रिलीज हाइड्रोजन आयंस। जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड था, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड होता है एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ पर रिलीज करेगा। फिर क्या होगा कि दिस टू विल रिएक्ट टुगेदर and sodium carbonate will be produced along with the production of carbon dioxide and water। जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज होगा यहाँ पर। एंड यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का नोजल से निकलेगा और फिर आग को बुझा देगा। ओके, जब हम लोग जो गैस सिलेंडर होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता है, उसका जो प्रेस करने वाला होता है, जब हम लोग प्रेस करते हैं ना, तब क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो नीचे में रहता है और ऊपर में क्या होता है, गैस से ये सपोज सिलेंडर है, ऊपर में क्या रहता है, ऊपर पोर्शन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नीचे में क्या होता है, नीचे में ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है। तो जब इसको हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं तब सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नीचे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है। रिएक्ट होने से क्या होगा कि बहुत सारा हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होगा और फिर ये दोनों रिएक्ट होने के बाद सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड इसका नोजल से निकलता है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इट कैन एक्सटिंग्विश फायर। So students, up to this for today. Stay safe in your home. I will be coming back with another lecture. And if you have not given like to this video till now, please give a like and share the video once again. Thank you.